The question goes like this. In a high school, a committee has to be formed from a group of 6 boys, and they have given the name of the boys as M1, M2, M3, M4, M5, M6, and 5 girls, Z1, Z2, Z3 till Z5. Okay, and they are giving some cases. Let alpha 1 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members having exactly 3 boys and 2 girls. Let alpha 2 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has at least 2 members having equal number of boys and girls. Okay, and let alpha 3 be the total number of ways in which the committee can be formed such that it has 5 members, at least 2 of them being girls, and alpha 4 be the total number of ways in which the committee can be formed such that it has 4 members having at least 2 girls, and such that both M1 and Z1, these are a particular boy and a particular girl. These are fixed because their names are given. M1 and Z1 are not in the committee together, are both not in the committee together. ठीक है, फिर उन्होंने दो लिस्ट दिया है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. लिस्ट 1 में दिया है द वैल्यू ऑफ अल्फा 1, Q is value of alpha 2, R is value of alpha 3, and S is value of alpha 4. And list 2 में they have given a few numbers: 136, 189, 192, 200, 381, and 461. And the question is asked, then which of the following is are correct? P24 मतलब P24 मतलब value of alpha 1 is 4, 4 is 200, Q is 6, R is 2, S is 1, P is 1, Q is 4, R is 2, S is 3. Like that they have asked the questions. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुमको? इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन देन. ठीक है, तो हमको एक एक करके निकालना है, मतलब अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 निकालना है हमको. ठीक है, ए फ्यू ऑफ देम आर वेरी वेरी इजी. In fact, they are straight away from NCERT textbook. Okay, what we are having? We are having 6 boys, right? 6 boys. क्या नाम है 6 boys का? M1, M2, M3, M4, M5, and M6. These are the boys. Okay, and the girls are given to be, just 1 second, and there are 5 girls. 5 girls: Z1, Z2, Z3, Z4, and Z5. Okay, so first of all we'll try to find out alpha 1. तो alpha 1 में क्या सिलेक्ट करना है हमको, देख लो. alpha 1 is the first case itself. Alpha 1 is what? The total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members having exactly 3 boys and 2 girls. So how many ways it can be done? How many ways can it be done? Can you tell me? It must have exactly 3 boys and 2 6C3 into girls. 5C2. Yeah, this is the easiest thing to do. हमको select करना है 3 boys and 2 girls, 5C2. If you calculate, it will come out to be 200. Okay, alpha 1 is 200. So क्या मिला? alpha 1 is 200, मतलब P goes for 200. कौन था? 200 कौन था? 4. P goes to 4. अब देखते हैं इनमें से P goes to 4 कौन सा है. P goes to 4 A में भी है, P goes to 4 C में भी है, तो A और C में से कोई होगा. अभी Q निकालना पड़ेगा हमको. Are you getting it? Q निकालने से भी नहीं होगा. Q देखो, ये दोनों में से कोई आंसर है नहीं. Are you getting it? Hello. R भी निकाल के देखना पड़ेगा. नहीं. Are you getting it? Hello. अल्फा 2 निकालेंगे अभी. हाँ, Yes, अल्फा sir. 2. अब अल्फा 2 में चलते हैं. अल्फा 2 में क्या है? अल्फा 2 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has at least 2 members having equal number of boys and girls. Can you tell me?
The committee has to have at least 2 members having equal number of boys and girls. क्या क्या होगा? Equal number of boys and girls. क्या क्या हो सकता है? 6C1 into 5C1 plus 6C1 into 5C1 मतलब एक गर्ल एक बॉय हो गया. और क्या हो सकता है? 2 6C2 into girls 5C2. 2 boys. और क्या हो सकता है? 3 girls 3 boys. वैसे ही होगा बाकी भी नहीं. 6C4 into 5C4. और क्या हो सकता है? और एक ही केस होगा 6C5 into 5C5. और तो नहीं होगा, और तो नहीं हो पाएगा, यस सर। है ना? तो क्या होगा ये क्या होगा? ये एक सीरीज है, पढ़ा है तुमने? कहाँ पढ़ा है? बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ा है ये एक सीरीज का नाम है. कौन सा सीरीज है? इसको मैं अगर 6C0 और 5C0 ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? इज इट नॉट 11C5? इज इट 11C5? हेलो 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 हेलो. इज इट 11C5? मैंने तुमको उस दिन बताया था. माइनस, इसको मैंने ऐड किया था जबरदस्ती, इसका वैल्यू 1 है तो -1 कर देते हैं. ये कैलकुलेशन इजी हो गया अभी, नहीं तो इसको बार बार निकाल के देखना पड़ेगा. और क्या, या तो तुम इसको बार बार निकाल के ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड करो, सर नहीं तो तो ऐसे यहाँ करो. तो मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ भी कर सकते हैं। हाँ, मैंने तुमको उस दिन बताया था ये सीरीज. मैं तुमको उस दिन बताया था, NPR के कहीं आया था, मैंने तुमको बताया था ये. कहाँ बताया था? इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया था यस सर। ये. हाँ, तो भूल गए अभी? ये भूल गए ये N1 N2 कैसे किया था हमने? ठीक है, तो इसका आंसर मैंने वो करके रखा सीरीज है. अलग था सर थोड़ा, आप जो हाँ बताए वो थे वो कोई, अलग था। हाँ वो अलग था. ये भी अलग सीरीज है, ये भी अलग सीरीज है. ये सर सीरीज ये भी तो तुम पढ़ मतलब लेना. ऐसे होता है ना, 6C1 6C2 6C6 से लेके 6C6 और 6C0 रहेगा तो वो हो जाएगा। हाँ, एक में दोनों में सेम रहेगा तो भी होगा, दोनों में सेम रहेगा तो भी होगा वो. तो लास्ट टर्म जो है ना वो आ जाएगा इसमें, 0 से जाना है बस. ये वाला सीरीज है, NCR इंटू MCR. R is running from 0 to N और M और M. तो ये क्या हो जाता है? क्या हो जाता है ये? N plus M C द हायर वन. जो हायर वन होगा वो, ये इनमें से जो हायर होगा वो आएगा, तो वही यहाँ पे आएगा. ठीक है, हेलो, पढ़ा तो होगा वो तुमने, N और भूल गया. M में हायर वन को लेना है। हाँ, हायर वन, और वही आएगा यहाँ पे भी पढ़ा होगा ये सीरीज तुमने. यस सर, पढ़ा है. हाँ, तो कैसे भूल के जाते हो? ये क्यों पढ़ा है? ये इसी के चलते तो पढ़ा है, ये सब कैलकुलेशन इजी हो. तो Q गोज फॉर, अभी देखो Q, ये अल्फा टू Q था. Q गोज फॉर व्हाट? क्या मिला हमको? 461. कौन है? 6. अच्छा, ये अभी A और C में से कोई है, उन दोनों में झगड़ा हो रहा है. Q गोज टू 6. एक बोल रहा है मैं करेक्ट हूँ, दूसरा बोल रहा है मैं करेक्ट हूँ. अल्फा ट्री तो निकालना ही पड़ेगा अभी. ठीक है, तो अल्फा ट्री निकालते हैं. अल्फा ट्री कौन था देखते हैं. मेरे ख्याल से यहाँ तक तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई नहीं हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा तुमको, है ना? तो एनसीईआरटी क्वेश्चन जैसा हो रहा है. थर्ड देखो, अल्फा ट्री बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन व्हिच द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट इट हैज 5 मेंबर्स, एटलीस्ट 2 ऑफ देम बीइंग गर्ल्स. बताओ क्या होगा? 5 मेंबर्स होना है, एटलीस्ट 2 गर्ल्स होना है. बट जल्दी बताओ, मैं लिखूं उससे पहले. 5C2 इंटू 6C3, समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो. यस सर. फिर 5C3 इंटू 6C2, सही है? और सही है कि नहीं? 5C4 इंटू 6C1, समझ में आ रहा है? प्लस 5C5 इंटू 6C0.
ठीक है, तो इसको अगर इसमें इस सीरीज में मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ, मैं लिखूँ इससे पहले। 11C5 किसको माइनस करेंगे, किसको किसको माइनस करेंगे, यहाँ 2 से शुरू हुआ है तो 1 वाला माइनस करना पड़ेगा, है ना। 5C0 इंटू 6C5 माइनस 5C1 इंटू 6C4, ये कौन सा सीरीज हुआ, उस दिन वाला सीरीज। समझ में आ रहा है ना। हेलो हेलो Yes, sir. हेलो, यहाँ डिनोमिनेटर सब 5 हो रहा है, देखो डिनोमिनेटर का सम 5 हो रहा है, ये उस दिन वाला सीरीज हुआ। ठीक है, ठीक है भाई लोग, हेलो, Yes, sir. है ना। इसको कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर मैं लिख के लाया हूँ, ये होगा 381, ये होगा 381। अभी देखते हैं 381 कहाँ पे था, 381 वाज 5, तो इन दोनों में से सी वाला करेक्ट दिख रहा है अभी, लेकिन इसको तो पूरा नहीं बोल सकते, कि बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या, यही करेक्ट है बोल सकते हैं, लेकिन 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 मान लो, मान लो ये आर में भी 5 लिखा रहता तो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना की कोशिश कर रहा हूँ, आर यस में भी Yes, 5 sir. लिखा रहता तो हमको एस भी ढूंढना पड़ता। आर यू सर, गेटिंग उस इट, समय हेलो। क्यू और आर को देखते ही नहीं, डायरेक्ट एस देखते। हाँ, अभी इस क्वेश्चन में तो आर नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने तुमको चेंज कर दिया है, तुमको अभी देखना ही पड़ेगा अल्फा 4, तो अल्फा 4 भी क्यों छोड़ दे हम, आर यू गेटिंग इट। तो मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, अल्फा 4 भी निकालना पड़ रहा है अभी, क्योंकि तीनों सेम हो गया, तीनों को मैंने सेम कर दिया, नहीं आर को भी मैंने 5 बना दिया, अभी भी ए और सी में झगड़ा हो रहा है, कोई एक करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि अल्फा 4 भी मुझे निकालना है, और अल्फा 4 इसीलिए मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैं इसको निकालने का थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, ये अल्फा 4 क्या दिया, देखो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी कैन बी फाउंड सच ए वे दैट इट हैज 4 मेंबर्स, इनमें 4 मेंबर होना है, एटलीस्ट 2 are girls, मिनिमम 2 गर्ल रहना ही है, and such that M1 and Z1 are not together, M1 and Z1 are not together in that committee। ठीक है, अब देखो अल्फा 4 निकालेंगे हम, अल्फा 4 में क्या होना चाहिए, देखो अल्फा 4 में होना क्या चाहिए ये बताओ, क्या होना चाहिए, 4 मेंबर्स होना चाहिए, है ना। गर्ल्स कितने होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एटलीस्ट होना 2। चाहिए, और यस क्या सर। होना चाहिए, M1 एंड Z1, ये पर्टिकुलर नेम्स है, ये दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए, ये दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, कितने गर्ल्स है मेरे पास, कितने गर्ल्स है मेरे 5। पास, 5 गर्ल्स है, मान लो मैंने 5 गर्ल्स में से 2 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, केस बनेंगे 2, 3, 4 एंड 5, यही ना बनेंगे केसेस, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब, है ना। मैंने 2 गर्ल्स सिलेक्ट कर लिया, तो कमिटी में 4 मेंबर्स होना है, और बाकी 2 बॉयज आएंगे, किस में से, कितने में से आएंगे, 6 में से आएंगे। लेकिन इसमें तो क्या इसको होगा, ऐसे कर सकते हैं क्या कि जीवन का अगर लिए उसका केस बना देंगे और नहीं लिए उसका केस बना देंगे। हाँ वही करने जा रहे हैं, मैंने मैंने क्या करने जा रहा हूँ देखो, मैंने टोटल निकाल लिया विदाउट एनी कंडीशन अप्लाइड, इसमें अभी कौन कौन बैठा है, इसमें M1 और Z1 भी एक साथ बैठा है इस सिलेक्शन में, समझ में आ रहा है, हेलो, सिलेक्शन में M1 Yes, एंड यस। sir. Z1 बैठा है, तो मैं क्या करूंगा ना, M1 Z1 का जो सिलेक्शन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो कहानी, एक कहानी इधर है, कहानी इधर बनाऊंगा, देखो अब क्या हो रहा है, 4 का सिलेक्शन हो रहा है इसमें इसमें इसके अंदर ना, इसके अंदर का कहानी, 4 का सिलेक्शन करके रखा है हमने, उसमें से ना M1 और Z1 बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को फिक्स करके जितने भी केसेस बनेंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कहते हो, क्या यस कहते हो, सर। सही है। अब देखो M1 और Z1 बैठ गया यहाँ, और 2
2 सीट बाकी है ना, 2 सीट बाकी है। हेलो, यस सर। है ना। तो हमने क्या केस बनाया था, ये केस कौन सा था, 2 गर्ल्स का केस था। तो M1 तो G1 G1 तो बैठ गया 4C1 है, तो क्या होगा, रिमेनिंग 5 बॉयज में से मैं एक को सिलेक्ट करूंगा, आर यू गेटिंग इट, एंड रिमेनिंग 4 गर्ल्स में से एक को सिलेक्ट करूंगा, आर यू गेटिंग इट। हेलो, यस Yes, सर। sir. ठीक है। तो ये क्या हो गया, कितने, हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन, 5C1 इंटू 4C1, समझ में आ गया। तो इसका केस बन गया, 2 का केस बन गया, 2 का केस नहीं बन गया। सर, सर 2 नहीं, गर्ल्स भी तो ले सकते हैं। और कहाँ से 2 गर्ल ले लोगे भाई, 2 गर्ल तो बन गया सर ना, एक तो एटलीस्ट G1 टू बैठा था। गर्ल बोला है। यस सर। अरे ये सिर्फ 2 के लिए बना रहे हैं भाई, सिर्फ 2 के लिए बना रहे यस हैं। सर, सिर्फ 2 के लिए ही M1 और G1 बैठ गए, उसके बाद बाकी दोनों में तो दोनों गर्ल्स भी बैठ सकते हैं। अरे ये एग्जैक्टली 2 के लिए बना रहे हैं ना भाई केस, ये 3 का बनाएंगे ना। अच्छा। यस सर, यस। नहीं समझे, ये सर 3 आ केस गया सर। बाकी ना भी, एक एक करके बनाएंगे। ये किसके लिए हुआ, एग्जैक्टली 2 के लिए हुआ भाई, यस पर सर। नहीं समझे, एग्जैक्टली आ 2 गया हुआ। सर, आ गया। और हाँ, और मतलब प्लस, समझ गए। अभी किसका बनाएंगे, एग्जैक्टली 3 के लिए बनाएंगे। कैसे होंगे, वही करेंगे, वही करेंगे। क्या करना है, क्या करना है बताओ। सर 5C3 5 3 और इंटू 6C1। 6C1, इसमें से अभी सब्ट्रैक्ट करना है। अभी कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका कहानी यहां बनाते हैं, इसका कहानी यहां बनाएंगे, है ना। क्या है, 4 है, इसमें से M1 और G1 बैठा हुआ है, ठीक है। हेलो, ठीक है। यस अब सर। बताओ, अब बताओ, केस किसका बनाए थे, 3 गर्ल का, 3 गर्ल होना है। तो एक बैठी है, और कितने गर्ल लाना है हमको, 2 गर्ल लाना है। कितने में से यस लाना है, सर। कितने सर में से 4 लाना में है, से। 4 में से. 4 में सर से। 4C2। 4C2, और बॉयज बचेगा क्या, नो सर। बॉयज तो है ही नहीं, 5C0। अरे समझ में आया कि नहीं भाई, यस आया सर। कि नहीं, Yes, sir. बता दो। हाँ, ये किसके लिए हुआ, ये किसके लिए हुआ, ये 3 के लिए सर हुआ, 3 के लिए। समझ गया। अब समझ में आ रहा है मैं यस क्यों सर। लिया अल्फा 4, मैंने क्यों लिया अल्फा 4, अब समझ में आया। मैं अल्फा 4 नहीं करता तो भी हो जाता, लेकिन मैं अल्फा 4 मुझे तुमको सिखाना था। अब बताओ अल्फा, ये फोर्थ केस क्या होगा बताओ। 5C4 इंटू 6C0। 5C4, ये तो पूरा का पूरा गर्ल्स आ गया है 4, यहाँ तो बॉयज का जरूरत ही नहीं है, यहाँ कोई बॉयज ही नहीं है। तो M1 G1 वैसे भी तो M1 नहीं है, ये तो खत्म हो गया, ये तो केस ही नहीं बनेगा। नहीं, हेलो, यस यहाँ तो सर। कोई बॉयज ही नहीं है, पूरा गर्ल्स है, तो गर्ल्स अकेली है G1, M1 तो है नहीं। इज इट नॉट द आंसर, इज इट नॉट द आंसर। यस सर। तो ये कैलकुलेट करोगे ना, आएगा 189। तो अल्फा, तो अल्टीमेटली ये कौन था, ये R था। R किसके तरफ गया, 189 कौन है देखो, 189 कौन है देखो भाई, 189 2, तो R गोज फॉर 2। अब देखो आंसर, A और C में से कौन 2 में जा रहा है, S इज गोइंग फॉर 2, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो समझ गए बाबू लोग। यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये जो S वाला था ना, वो बहुत बढ़िया था। ये जो मैंने लास्ट में तुमको करके दिखाया ना, दिस केस वाज अ वेरी नाइस केस। वैसे वो उस क्वेश्चन पेपर में ये नहीं पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2019 पहुंच गया भाई, यस सर, आज हो ही 2019, जाएगा खत्म। आज भगवान करे हो जाए। हो जाएगा 2019 सर, है तो एक ही दिन। ना, ये मतलब क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना अभी, जल्दी से क्वेश्चन लिखना है ना। 5 persons A B C D E are seated in a circular नोटेशन हो गया। arrangement, okay, if each
of them, if each of them is given a hat of one of the three colors, कौन सा कलर है? रेड, ब्लू and green, then number of ways of distributing the hats such that the persons seated in adjacent seats get different colored hat is. ये ना इंटीजर टाइप क्वेश्चन था. प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. 5 persons ABCDE नाम दिया हुआ है. दे आर सिटिंग इन ए सर्कुलर अरेंजमेंट, एक सर्कल के पेरिफेरी में बैठा हुआ है. इफ ईच ऑफ देम गिवन ए हैट of one of these three colors, red, blue and green, then number of ways of distributing the hat such that the persons seated in adjacent seats get different colored hat is. ये as I said integer type question था. तो हम थोड़ा सा इसका सिचुएशन को समझ लेते हैं. ये ऐसे बैठा है भाई लोग, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे ए बैठा है, मान लो बी, सी, डी और ई बैठा है. ठीक है, कोई समझ में आ रहा है? हेलो यस सर। हेलो. Yes, sir. हाँ, हमको क्या क्या दिया है, क्या क्या कलर का हैट है हमारे पास? रेड कलर का है, और क्या क्या था? एक ब्लू कलर का है क्या? ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू कलर का है और ग्रीन कलर का है. ग्रीन है क्या? नहीं, हाँ ग्रीन. यस सर। ठीक है, अब बताओ, ये तो 3 हैट है, 3 कलर का हैट. कितने नंबर का है वो नहीं दिया है, जितने भी नंबर का हो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता. द क्वेश्चन इज, एक एक तो नहीं उठाएंगे, वो तो ये तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगा. नहीं, 5 लोग 3 ही कलर 3 ही हैट, ऐसा तो नहीं होगा. तो हम दिमाग इसमें ये लगाना है कि इनमें से, ये हैट में से हम कितने मैक्सिमम हैट निकालेंगे. व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैट्स रिक्वायर्ड? मान लो मैंने 3 रेड हेड्स निकाल लिया. मैंने क्या निकाल लिया? मैंने 3 रेड हेड्स निकाल लिया. समझो, बात को समझो. तो इसको मैंने रेड Only two. पहना दिया. हाँ, इसको देखो, Maximum हाँ two. हाँ हाँ, इसको मैंने रेड पहना दिया. तो इसको नहीं पहना पाऊंगा. इसको दूसरा वाला हेड रेड पहना दिया, रेड 1, रेड 2, है ना? इसको नहीं पहना पाऊंगा. इसको रेड 3 पहना दिया मैंने. लेकिन क्या हो गया, ये दोनों एडजस्टेंट दोनों का रेड हो गया, जग लाल लाल हो गया. नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा. Yes, समझे sir. कि नहीं भाई? तो क्या होगा मैक्सिमम? ये तो मैं 3 लिया था, 3 ही में काम हो गया. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स of each color has to be what? 2. 2 ही हो पाएगा. हेलो हेलो, Yes, sir. समझ में आ गया? ओए, समझ में आया कि नहीं? तो क्या क्या हो Yes, sir. पाएगा भाई? तो क्या क्या हो पाएगा? क्या क्या हो पाएगा? क्या क्या हो पाएगा? तो 2 मतलब आर एक उठाया हेड हमने, को छोड़ना है। 2 आर उठाया, 2 ग्रीन उठाया, है ना? ओए, समझ में आ रहा है? हेलो. और एक Yes, था sir. ब्लू.
ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, दो आर, दो ब्लू, दो ब्लू और एक था ग्रीन, ये ग्रीन है ना, ठीक है, और क्या हो सकता है, ब्लू, दो दो ब्लू, ग्रीन, दो ग्रीन, दो ब्लू, दो ब्लू, दो ब्लू एक आर। दो ब्लू, ये मेरा कंप्यूटर गधा हो गया, दो ब्लू, एक आर, एक था रेड, ठीक है, कुछ कुछ हमको समझ में आने लगा है अभी, ठीक है, कोई समझ में आ रहा है, ये हो गया खेल। यस सर। अब मान लो, मान लो मैंने ब्लू को उठाया और ये ए है, ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ये ई है, मैंने ब्लू को उठाया, दो ब्लू को उठाया, इसको ब्लू दे दिया, तो ए को ब्लू देने का कितने कितने तरीके हो सकते हैं, मतलब ए ब्लू पहन के बैठने का कितने तरीके हो सकता है, हाउ मेनी वेज ही कैन सिट, वन तरीका। ए कैन सिट विथ ब्लू कलर इन हाउ मेनी वेज, कोई भी 5 जगह में बैठ सकते हैं ना, ये बोला थोड़ी था ये यस सर, यहीं पे जगह बैठेंगे, 5 है। यस सर। 5 वेज, ओए समझ में आया, वो कलर यस का सर। हैट लिया और कहीं भी बैठ गया जाके, वो थोड़ी बोला था वो 12 बजे जहां है वहीं पे बैठेंगे, समझ गया, घड़ी का 12 बजे जहां प्लेस है वही बैठेंगे ऐसा तो नहीं कहा था ना, वो कहीं भी बैठ सकता है, यस सर। तो इट कैन बी डन इन 5 वेज, ओए समझ में आ रहा है, यस हेलो, सर। हेलो, ठीक है, अब ये अगर ब्लू पहना, ये अगर ब्लू पहना तो बाकी का क्या होगा, ये क्या पहनेंगे तब, ग्रीन पहनेंगे, और तब ये भी ग्रीन पहनेंगे, भाई समझो बात को, और ई और सी क्या पहनेंगे, रेड पहनेंगे, भाई समझ में आ रहा है, हेलो, 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 इसका ये समझ अपोजिट में भी हो आया कि सकता नहीं, हाँ इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, नहीं तो क्या होगा, ये जो आर आर है वो ब्लू के सॉरी ग्रीन ग्रीन की तरफ चला जाएगा, है कि है। नहीं यस भाई, सर। हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन, 2 वेज, है ना, ए कैन सिट इन 5 वेज, तो 5 इंटू 2 हुआ, और कितने कलर था, ये तो सिर्फ ब्लू के लिए बनाया था, ऐसा रेड के लिए भी बनेगा और ऐसा ग्रीन के लिए भी बनेगा, है कि नहीं भाई, तो कितना हुआ टोटल नंबर ऑफ वेज, तो 5 into 2 क्यों किए? अरे अभी तो तुमने बोला था ऐसा दो होगा, ये ऐसा दो नहीं तो होगा, मैं तो ये बोला था कि रेड बी पहन लेगा और डी हाँ ठीक 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 है, मैं बता रहा हूँ तुमको कौन सा दो होगा, एकदम बता रहा हूँ मैं तुमको, ये ए है, ये ब्लू ही पहन रहा है ना, अब बी यस पहले सर। क्या पहन रहा था, ग्रीन पहन रहा था, अब रेड पहनेगा वो, समझ गया भाई, वही समझा कि नहीं यस सर। भाई, अब डी भी रेड पहनेगा, ये दो केस होगा कि नहीं भाई, और ये दोनों जो है ये दोनों ग्रीन पहनेंगे अभी, यस सर। कौन था ये, सी और ई, समझ गए, तो ये दो लेकिन केस ये होंगे, थोड़ी जरूरी है कि ए बी सी डी ऑर्डर में ही बैठेंगे, वो इधर उधर ही बैठ सकते हैं। तो वो तो हमने कर लिया ना, ये वो तो हमने बना लिया ना, 5 वेज, वो तो हमने तो वो बना तो लिया था ए का 5 हुआ वेज, ना। तो वो तो अरे ए का हुआ ना सर, मान लीजिए तो ए सबका, बैठ गया, फिर ए के बाद बी सी के जगह सी बी भी आ सकता है। हाँ क्या, सर्कुलर अरेंजमेंट बोला है ना, ए बी सी डी ई, ऐसा सर्कुलर अरेंजमेंट बैठेंगे, तो मतलब ऑर्डर में बैठेंगे, ए बैठा तो उसके हाँ ना, बगल में बी ही वही तो बैठेगा। लिखा है ना, वही तो लिखा है, वही तो लिखा है, फाइव फिर कि पर्सन ए उनको बी सी जमा डी आर के सीटेड इन बैठाना ए है। सर्कुलर अरेंजमेंट, यस सर, फिर हो जाएगा। सिर्फ हेड को चेंज करना है भाई, ए बी सी डी बैठा है,
ABCDE बैठा है, सिर्फ हेड का कलर को चेंज करना है, ऑल्टरनेट कलर यस सर, होना मैं चाहिए। सोचा उनको बैठाना है। ठीक है, तो ए कहीं भी बैठ सकता है, ये 5 प्लेसेस में से कहीं भी बैठ सकता है। ठीक है भाई, यस तो कितने हुए यस सर। टोटल? 30 हुआ ना? यस सर। यस सर। ये हुआ आंसर। इंटीजर टाइप का ऐसा आंसर देते हैं। ये 2019 में आया था भाई। अब चले 20 की तरफ, यस कोरोना की तरफ चलते हैं अभी, है ना। ये 2020 में पेपर 2 में आए हैं भाई। पेपर 1 में जो क्वेश्चन है वो नहीं है। पेपर 2 में 2 क्वेश्चन आए हैं भाई। 2020 में पेपर 2 में 2 क्वेश्चन दिया है। ये उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू कैन डू दिस योरसेल्फ। ओके, क्वेश्चन लिखूं? प्रीवियस क्वेश्चन में एनी डाउट यू कैन आस्क, इफ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन आस्क। मेरे हिसाब से तुमको समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, एन इंजीनियर, and let me tell you, we have done one question like this. An engineer is required to visit a factory for exactly 4 days during the first 15 days of every month, and it is mandatory that no to visit take place on consecutive days, on consecutive days. Then the number of all possible ways in which such visits to the factory can be made by the engineer during 1 to 15 of June 2021 is, ना, ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। And as I said, we have done one question like this. An engineer is required to visit a factory for exactly 4 days during first 15 days of every month. And it is mandatory that no to visit take place on consecutive days. Then the number of all possible ways in which such visits to the factory can be made by the engineer during 1st to 15th of June 2021 is. The answer will be an integer. कुछ समझ आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ के यस सर, तुमको हो कुछ जाएगा। आइडिया हो जाएगा? यस मैं सर। तुमको एक हिंट दे दूं। हिंट, सर बैगर हमने एक लगेगा। क्वेश्चन किया था, बहुत दिन पहले, याद करो, कि 24 people required to be seated in a row. नहीं, there are 24 seats, 10 people सर are required to be 15C4। 15C4, not exactly 15C4. You are pretty close to the answer but not the exact answer. 15C4 is not the answer.
मेरे बात सुनो, 24 सीट था, हमने ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही क्वेश्चन किया है। 10 लोगों को बिठाना है सच से वेदर नोबडी टेक्स द कंसेक्यूटिव सीट्स। हमने एग्जैक्टली यही क्वेश्चन किया था जब मैं तुमको क्या पढ़ा रहा था, कौन सा पढ़ा रहा था, कौन सा टॉपिक का है ये, बेगर्स मेथड जब पढ़ा रहा था। यस सर। ये उसी का भाई है, और पूरा लैंग्वेज और सिचुएशन को चेंज कर दिया है। चलो मैं तुमको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। वैसे लेस देन 1 मिनट लेफ्ट, यू प्लीज रिजॉइन। ओके, मुझे करना क्या है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 को अलग अलग कर देना है। नहीं, हेलो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 को अलग अलग करना है। ये विजिट है उसका, डे 1, डे 2 ये क्या है, द विजिट। डे 1 का जो विजिट होगा और डे 2 का जो विजिट होगा, उनमें से कुछ डेज आना है। हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। मान लो डे 1 और डे 2 विजिट के बीच में x1 डेज है, यहाँ x2 डेज है, यहाँ x3 डेज है, यहाँ x4 डेज है, और यहाँ x0 डेज है। ठीक है,